everyone, and welcome once again into our channel. And today there are two young ladies sitting next to me, and one of them is our family friend's daughter who has come here on student visa, international student visa. And the other young lady is also from India, and she is here also on international student visa. So I wanted to introduce them. Hi guys, I'm Arya. I'm studying at UCID. I'm doing a BCom degree, double majoring in economics and marketing. Hi guys, I'm Pari. I'm studying at UNSW and I'm also doing Bachelor's of Commerce, but I'm double majoring in accountancy and finance. Okay, thank you so much for introducing yourself. So अब मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, तो आपने ऑस्ट्रेलिया भी क्यों चूज किया? You know first. Oh yeah, I'll go first. So I did not plan to be. I was deciding to go to London first. Okay. Because I did not like. It was more like वहाँ पे इतनी scholarships नहीं थी और यहाँ पे I was getting like more scholarships. Okay. So it was more like. And plus the university है UNSW QS ranking में it was 19th and Bath University. So 19th in like how in Australia wise you're talking in the world. Wow. Yeah. Okay. And University of Bath, Warwick were like I think so. It was around 25th, 25, Yeah, 26th something. ranking. And I have a pretty similar story when I was going to London. But UCID obviously the better scholarship and also the study structure is much better because the kind of degree plan out that here it is. Like there's a semester system and even the units are much better here. I was getting a full scholarship at Leeds, but the university ranking again wasn't that great. It is around 30. Okay. So I felt that UCID is at 18th. So it's a much better ranking, and plus Australia's way of living is much better than London's. And plus also that in 2023 there was a recession in London, so I just didn't want to take the chance that if I go there and I don't end up getting a job. So yeah. Okay, that's good. Okay, so now the next question comes like, did you apply yourself or have you approached someone in India for doing your visa processing? Any agent or something? Did you approach any agent over there or have you applied yourself? Like how does it work if you any international student from India say they want to come? So if you can please guide like what's the procedure in short? So there are about 2 to 3 agents that I know of. personally. लंदन गई हैं आप? I have been to London. You and what about No, you? I haven't been to London. तो आप दोनों लोगों को ये क्यों लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो एजुकेशन प्रणाली है वो लंदन से बेहतर है? Okay, so from my dad's family, they all live in London, and they do say it is a very good country, ऐसे. But while safety-wise, education-wise, they do prefer Australia over London. It's more like that. And my dad asked, like my chachu, like, should I send her? He's like, please don't send her to London because as a girl, he was worried about my safety as well. This was one of the reasons. And education mein, they were like, it is getting too hard for people like those who are Indians. They're not getting enough jobs, and the study structure is not like it's similar to India. Okay. And- So the London is similar to India. Yeah. तो ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था जब इन्होंने लंदन की जगह ऑस्ट्रेलिया को चूज़ किया, बिकॉज एट दैट टाइम आप दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, आज आप मेरे यहाँ पहली बार मिले हैं. तो आपका क्या कारण था इंस्टेड ऑफ लंदन आपने ऑस्ट्रेलिया को चुना? No, like I mentioned before, and it is pretty similar to hers as well, that safety was the main issue. And secondly, recession, like the job criteria, because a lot of my friends were there, my seniors, and they've already done like masters or bachelors also. None of them were getting enough jobs. So I was like, might as well come to Australia because UCID is almost, I think it has the 4th ranking all over the world for the employability rate. So there is a higher chance of getting a job in Australia. In Australia. So how long does this take? If once you start applying for your international visa, so within what's the time duration to get the visa and to arrive here? Like It honestly varies from person to person. For me, it was 1 month, but there are friends of mine who've literally got it on an in a average, day. what on I an would say average? an average of 15 days, 15 to 20
Oh, you will get the visa with Yeah. the Right. Yes. It Yeah. was still at least 2023. Right now, it's getting, I think, more difficult to get an Australian Okay. visa. So तो my- अगर आप एज ए स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कितना बजट होना चाहिए, कितना आपको बैंक में शो करना पड़ता है, क्या कैसा है, थोड़ा सा आप उसमें थोड़ा अगर डिटेल कर सकें. can guide better. Okay, so for this you need your passport, the photos. I don't know more about financial because my dad did that, but it was almost like 42,000 something. I'm not really I'm sure. not sure. I think around 35 or 40,000. Plus, you need your Dollars. COE. Yeah. चलो यहाँ से शुरू करते हैं. Okay, Answer so from for this. like in your bank account, you should have at least your first year Fees. and I think so 30 to 40,000 for visa fees as well. And there was one more thing you need to add. I forgot about that. You need your COE. So until Yeah. you don't get the COE, that's a confirmation of enrollment from your university. University. You can't apply for the student visa. Oh, so that's the first thing you have to get it, and Yeah. then So you first you get. get like admission, and then you get a COE. So who after- does that with the uni? Like your agent? Either you Your can do agent. it or your agent. So in your cases, who did My it? agent. My agent. Your agent did it. सो प्रोसीजर यहाँ से शुरू होता है कि सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, जो कि Yeah. बेस्ड होता है आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के ऊपर कि कितना आपका परसेंटेज है या आपने क्या पढ़ाई करी है और आपने यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है. तो क्या आपने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था या कई यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था, उसके बाद में आपको किसी एक से ऑफर मिला? Personally, I applied to most of the universities here. मैंने UNSW, UCID, UTS, Macquarie, University of Melbourne, University of Queensland. मैंने सब करा था apply, and luckily I got accepted in all the universities. But I chose on the basis क्योंकि मैं commerce की student हूँ, तो UCID की ranking UniMel से commerce की उसमें better आप थी. अपनी यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म बता दीजिए. University of Sydney, that's UCID. तो फिर उधर उनकी रैंकिंग बेटर थी तो आई चोज दैट, बट मैंने काफ़ी सारी जगह अप्लाई किया. तो आपने जैसे हो सकता है आपने इस पूरी पहले टर्म की जो फीस है और जो भी खर्चे रहे हैं, हो सकता है आपने खुद अफोर्ड कर लिया हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, कि इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या उसके लिए बैंक वगैरह लोन करती हैं इंडिया में? क्या प्रोसीजर है, थोड़ा बहुत जानकारी है आपको उसकी? डेफिनेटली बैंक्स लोन तो देती है, स्टूडेंट लोन, पर उसका काफ़ी मिनिमल रेट भी है. बट पर्सनली मेरे को नहीं उसका आइडिया होता है क्योंकि मैंने दिया नहीं. व्हाट अबाउट यू? Same. I did not apply for the bank loan, so I don't know. बट पर्सनली आई वुड से कि आप यूनिवर्सिटी पे भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अनलेस यू हैव लाइक अ गुड ग्रेड. तो आप वो अगर टाइम से अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो इस वजह से शायद से मैं उतनी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाई. पर जो इंसान शुरू से अगर आप अप्लाई कर रहे हो अराउंड लाइक फेब से, तो यू कैन एम फॉर गुड स्कॉलरशिप्स एंड यू कैन गेट इट इफ यू गेटिंग लाइक, अगर कॉमर्स की अगर आप स्टूडेंट हो और आप यूसेड आ रहे हो, तो जैसे उनका एंट्री रिक्वायरमेंट 95% है, तो अगर आप उतना अचीव कर पाते हो तो आप उसके बाद काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होते हो, एंड देन यू कैन गेट अ लॉट ऑफ दैट. तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप भी देती हैं, तो आपका खर्चा Not काफ़ी just रिड्यूस हो जाता है. universities, गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है. मैं आई हैव अ फ्रेंड जिसको गवर्नमेंट ने ही स्कॉलरशिप दी है, एंड उसकी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उसकी फीस, उसका रहने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट. बाय द वे दैट स्टूडेंट बिलोंग्स विच कंट्री? इंडिया. इंडिया से. अच्छा अच्छा. Okay, so yeah, that's good. Now moving ahead. So once you arrived here, आप लोग जब यहाँ आए, तो आपको like पहली बात तो एक कल्चरल शॉक या ऐसे कुछ हुआ, या आप थोड़े वो बताइए कि कैसे आपने एकोमोडेशन, कैसा experience रहा इसका? एक्सपीरियंस कैसे रहा, इस पे थोड़ा बताइए. For me, when I came, I was under 18, so I was very nervous because I was just 17 and I came. So I did not get an accommodation from SCAPE because it was all full by the time I applied. Okay. So I had to stay in a homestay. It was with an aunt, and it was. I don't like it. I don't prefer that. Don't go. To stay in It depends. relatives actually. place. No, it was a homestay. It was an Australian auntie. Okay, Australian auntie. Okay, I thought your auntie. So homestay, what is that term like? What does that It's like? more like for people who are under 18 Okay. who come here. Okay. And they, So who arranged this thing? Like your uni or? they asked me to apply to various sites. There's like Okay. Australian homestay. तो Right. एक से तो ये कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ से आप शुरुआत में अकोमोडेशन फाइंड आउट करते हैं? Okay, so our uni gave me a list to apply for under 18 accommodation. It was SCAPE under 18 houses,
classes, and then there was homestay and on-campus accommodation for under 18. I applied for on-campus accommodation. They told me I'm gonna get it in October, but I had to live for September as Out. well. But I did not get that. So then there was homestay, AHNU something. There's this site, you go on that and you apply for like the homestay, and they send you various families, like Australian families, that you can live with them, and these are all Australian government approved that. हाँ, वो सारे लोग उनके यहाँ पर रजिस्टर्ड होते होंगे, तो ये आपको लिस्ट तभी मिल जाती है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता होगा यूनिवर्सिटी के साथ. No, you can get it before as well. Before as well. Accommodation is something you can get before. You can just tell them that you are studying here. ओके. They don't ask for CA. तो आप वैसे दोनों लोग यहाँ पर क्या पढ़ने के लिए आपने शुरू में एडमिशन लिया था? Bachelor's of Commerce. दोनों लोग बैचलर. ओके, तो 12th पास करने के बाद ही आप यहाँ पे पढ़ने आ गए थे. ओके. आप जब यहाँ आए, जब यहाँ पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, तो आपको मतलब कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा वहाँ और यहाँ में, क्या डिफरेंसेस आपको मतलब लगा, एंड व्हाट डू यू वांट टू लेट अस नो अबाउट इट लाइक? So when I came here, even I was under 18, so I came alone because this time, due to some personal reasons, my family couldn't travel with me. And for me, the biggest thing was that to just come here, everything is so systematic here as compared to India. You need a certain app for like the cab, you need a certain app for your accommodation, for everything. So that's a huge shock that, okay, to get used to all of it. And the transport system is also really confusing here, the first time you come especially. तो इस वजह से मैं जब आई तो मेरे लिए मेरा भी अंडर 18 अकोमोडेशन, पर वो काफ़ी स्केप ईजिली मुझे मिल गया था. तो उनका काफ़ी सिस्टमैटिक वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग है, क्योंकि उनके एक स्टाफ हमेशा अंडर 18 के लिए रहता है, तो उन्होंने हमारे से काफ़ी कोऑर्डिनेट करके हमें बुलाया, सब करा. एंड स्केप में स्पेशली काफ़ी इंडियन इनटेक 2023 में काफ़ी इंडियंस आए थे ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे को उतना कल्चरल शॉक इमीडिएट नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथ एक ऑलरेडी कुछ लोग थे जिन्हें मैं जानती थी, फेमिलैरिटी थी. और उसके बाद इवेंचुअली आप अगर यूनी जाते हो तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं होता, बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी वेलकमिंग एंड काफ़ी अकोमोडेटिंग होते हैं, तो मेरे को उतना कोई चेंज नहीं लगा. इट वाज ऑल रियली नाइस एंड आई वाज रियली हैप्पी कमिंग हियर. व्हाट अबाउट यू? For me, when I first, there was no Indian when I entered. I was like, did I enter into the wrong class or something? In my class, there was no Indian. So I was like, there's no Indian, how will I talk? Or it was all Chinese and like Australian people. Most of them were Chinese and they were all busy in there. So it was like, is nobody gonna talk to me or what? But luckily they were welcoming. The teacher was super nice and all that. So it was just that, and also calling teachers by their first name was a little awkward to me, because we are kind of habitual of saying sir and ma'am or Yes. uncle and auntie, and there it was like calling them Mr. Adam or like whoever it is. That was a little culture shock. और बाकी जब आपने चलो कॉलेज या अपनी क्लासेस के बाहर जब आपने दुनिया देखी, तो आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी लगी यहाँ पर देख करके जो आपको बहुत अच्छी लगी हो अपने देश से बाहर, या लाइक आपके दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर के शायद कुछ कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि यार हमारे यहाँ ये ऐसा है और यहाँ ऐसा है, ये बेहतर है, या इंडिया में ये बेहतर है, ये यहाँ पे कम अच्छा है? The quality of like the air, the quality of the air, the neatness, and like everything is so neat, clean. The roads, there's no traffic basically. But in Delhi, there's a lot of traffic. दिल्ली वाले पीटेंगे जब दोबारा एयरपोर्ट में उतरो. Guys, I love Delhi. ये तो डर बस है, असली बात तो निकल गई. What about you, आर्या? तो मैं बता देता हूँ, आप लोगों को इनके नाम याद नहीं होंगे. शी इज़ परी, इनका वैसे रियल नेम जो है प्रतिष्ठा है पासपोर्ट में, और ये हैं आर्या बीच में जो बैठी हुई हैं. मेरे लिए आई थिंक रोड क्रॉस करने का जो यहाँ सिस्टम है काफी मेरे को अच्छा लगा. Yes. And then there's a green light, then you can walk, so you don't have वो पैनिक भी नहीं रहता. You don't have to see कि ओ अभी गाड़ी रुक रही है तब मैं जाती हूँ, क्योंकि दिल्ली में तो रह नहीं देते. इट्स नॉट अबाउट दिल्ली ओनली, एक इंडिया में कहीं पे भी, एवरीवेयर. कि ऑस्ट्रेलिया में जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी फील्ड में, वो अपनी कंट्री से और यहाँ बहुत फर्क है. लगता है आपको कहीं पर भी? हाँ, सेफ्टी का तो यहाँ काफी ज्यादा ध्यान रहता है. प्लस यहाँ पे अगर कभी भी इमरजेंसी, जो यहाँ नंबर है 000, आप उन्हें कभी भी कॉल करो, उनका रिस्पांस टाइम इतना अच्छा है. बिकॉज एक दो बार मेरे दोस्तों का पैर जैसे अगर मुड़ गया, यू नीड एन एम्बुलेंस इमीडिएटली बिकॉज दे कांट वॉक.
तो literally 5 minutes के अंदर there was a paramedics arriving and they did everything, the whole procedure. तो वो काफी अच्छा है यहाँ पे. और बाकी जब आपने इंडिया छोड़ा तो आपके जो बचपन के कॉलेज तक के दोस्त होंगे वो सारे छूट गए, तो यहाँ जब आपने दोस्त बनाए, चूंकि अब यहाँ पर तो जो स्टूडेंट्स होंगे सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको लगता है कि कुछ फ़र्क है अपने इंडियन फ्रेंड्स और यहाँ के नए बने हुए इंटरनेशनल फ्रेंड्स के बीच में? इज़ देयर एनी डिफरेंस, कुछ चीज़ें जो अलग लगी हों? अगर मैं इंटरनेशनल फ्रेंड्स की बात करूँ कि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं या चाइनीज़ हैं या फिर वहाँ के, उनके साथ मेरे को बस एक डिफरेंस जो मुझे पर्सनली फील होता है कि आप इंडियंस के साथ इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो, बिकॉज द रिलीजन, वो सारी जो हमारी प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, लाइक जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ महाशिवरात्रि था, सो ऑल ऑफ अस वर रियली एक्साइटेड कि अच्छा नहीं, कुछ लोग व्रत रख रहे हैं, कुछ लोग रात को मिंटो जाना है, मतलब देयर इज अ टेंपल हियर टू गो देयर, सो यू कांट रियली रिलेट विद दैट, विद दीस पीपल. दे वुड ऑलवेज फील कि दे वुड बी रियली अमेज्ड टू सी अस सो रिलीजियस, बट दे कांट रियली रिलेट टू इट. तो वो मेरे को एक लगता है कि वो इंडियंस के साथ जो घर वाली फीलिंग होती है वो हमेशा उनके साथ ही आएगी. बाकियों के साथ ऑब्वियसली देयर इज अ गुड कैमराडरी, उनके साथ दोस्ती बहुत अच्छी हो सकती है, बट आई फील अगर वो घर वाली फीलिंग है तो मेरे को हमेशा इंडियंस के साथ आएगी. बिकॉज हमारे फेस्टिवल्स जो थे जैसे होली, दिवाली, वी काइंड ऑफ सेलिब्रेटेड विद देम ओनली, एंड लाइक कभी कोई आते हैं बट दे डोंट रियली नो व्हाट टू डू. यस, तो कभी कभी वो भी आकर के ज्वाइन करते हैं अपने. So is there any like thing आप अपनी यूनी में कैंपस में ये कुछ सेलिब्रेट करते हो, इंडियन फेस्टिवल ऐसे कुछ होता है? आई थिंक ऑल यूनिवर्सिटीज एटलीस्ट जिनके साथ मैं काफी वो हूँ, UNSW, यूसिड एंड UTS, इन तीनों की, और मैक्वारी भी फॉर दैट मैटर, जितने सिडनी में है उन सब के इंडियन सोसाइटीज काफी एक्टिव हैं, और हम सब एक साथ कोलैबोरेट करके भी काफी इवेंट्स करते हैं. अभी कुछ दिन बाद आई थिंक अगले हफ्ते हमारा होली का इवेंट है, तो उसमें यूसिड और मैक्वारी साथ में कर रही है. सो आई थिंक हम लोग काफी फेस्टिवल्स एटलीस्ट साथ में सेलिब्रेट, तो एक कैंपस में सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? हाँ जी, वी ईदर डू इट ऑन कैंपस अगर जगह है, और अगर वो नहीं है तो हम लोग कहीं अलग से एक जगह लेते हैं. They kind of book a place and they sell tickets for like $15 or $10 for students, and then you buy the ticket and you go to that place and participate in. Yeah. अच्छा. For Holi they give colors, water balloons, whatever is required. राइट. तो बाहरी लोग भी आ सकते हैं? हाँ, मेंबर्स नॉन मेंबर्स. चलो हम लोग भी आएंगे इस बार. Done. एंड सेकंड थिंग कि आप यहाँ आने के कितने दिन बाद काम करना शुरू कर सकते हैं, या आपने कितने दिन बाद काम करना शुरू कर दिया था? ओके, सो काम करना तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो once you come here, but I think आप जब आते हो तो आपको एक बार समझने की जरूरत होती है. आप थोड़ा ये बताइए कि आपके क्या राइट्स है, वर्क राइट्स, जैसे आप जब पढ़ रहे हैं, मतलब हिंदी में जो आपकी स्टडीज चल रही है उस वक्त आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं, और प्लस जब छुट्टियां होती हैं तब क्या होता है? Okay, so when the uni is there, मतलब जब चल रहा है, then it's a 24-hour weekly restriction. जब यूनी नहीं है तो आप कितने भी घंटे काम कर सकते हो, उसमें कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं आता. मींस हॉलीडेज में? हाँ जी, हॉलीडेज, द वेकेशन टाइम. एंड उसके अलावा हाउ डू यू गेट अ जॉब? तो मैं आई थी जुलाई 2023 में. आई स्टार्टेड वर्किंग इन सितंबर, तो मैंने 2-3 महीने अपना पूरा यूनी सेटल करा. आई न्यू कि सिडनी में होता कब कैसे क्या है. फिर उसके बाद वंस यू टर्न लाइक अ सर्टेन, मतलब समझ जब सब आ गया, उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग इनटू वेरियस प्लेसेस. तो यहाँ पे 2 काफ़ी ज़्यादा सीक और इंडीड करके 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए. तो उसके अंदर यूजुअली द ओपनिंग्स आर इन अप्रैल. एक अप्रैल में सबसे ज़्यादा कैजुअल की ओपनिंग्स आती हैं, और एक सितंबर और अक्टूबर के बीच में. बिकॉज यहाँ पे अगर आप कैजुअल वर्क का देख रहे हो तो ब्लैक फ्राइडे सेल यहाँ पे काफ़ी बड़ा चीज़ है. तो आप उसके पहले अगर कभी भी अप्लाई करोगे, यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट अ जॉब. रिटेल में there are certain amount of jobs. जैसे आप एक R&B होता है, that's restaurant and bar, that's a different kind. Then there is जैसे coffee shops, इन सब में you need a barista course to do that. And then अगर bars में है तो आपको एक RSA license होता है, उसके अंदर you know learn how to make drinks and everything. तो आप बार में काम कर सकते हो. तो ये लाइसेंस कहाँ से मिलता है? ये यहाँ पे NSW गवर्नमेंट है, न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट, उनके वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई करते हो. there's a certain amount of fees that you need to pay. And Do you have any idea how much is it's the fees? around $120. $120. So it depends on like. I mean, मैं क्योंकि एक सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ तो उन्होंने मेरे को फ्री में करवाया था, बिकॉज वी स्पॉन्सर देम. नहीं तो फिर आप खुद से भी कर सकते हो. एंड देन इन फॉर रिटेल आई वुड से कि आप अक्टूबर के अराउंड अप्लाई करो, यू विल गेट अ जॉब. बेसिकली आप अप्लाई करते जॉब एज अ स्टूडेंट आई वुड रेकमेंड कि आप
जितनी जगह अप्लाई कर सकते हो, because personally I've applied to I think more than 300 or 400 jobs till now. You get rejection from I would say 350 of them, and then 50 you will say कि अच्छा ठीक है, they're reviewing your application, you'll get an interview, you'll get this. So you just need to keep applying. मीन्स कि रिजेक्शन से घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए. सिर्फ कंसिस्टेंसी है जो आपको कहीं ला सकती है. यहाँ पे एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया इज अ ह्यूज कल्चर ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स. तो जस्ट नेवर बी अफ्रेड कि दिस इज अ स्मॉल जॉब और बिग जॉब, दिस माइट नॉट बी यूजफुल, बिकॉज इन रिटेल I would say I'm doing marketing and economics. It's nowhere related to my course, but because I was doing retail, I was so, now I feel I'm so confident at selling products कि मेरा वो sales और marketing साथ में आ चुका है कि वो मेरे को sale भी आता है. अच्छा, how to market a certain product, if it's a new launch, how do I sell it to different people, even though it's like costing like $200, nobody would want to buy that kind of Stuff. you know, Yeah. sandal or something, Yeah. but I still have to sell that कि मुझे अपनी inventory है वो. So that's a new thing that you learn. तो यहाँ की जॉब में एक क्या बोलते हैं जो पेमेंट है वो क्या है, आवरली बेसिस पे क्या मिनिमम क्या पेमेंट है, और स्टूडेंट्स को मैक्सिमम क्या, इन जनरल क्या मैक्सिमम पेमेंट मिल सकती है, और मिनिमम कितना जो आपको मिलनी ही चाहिए और जो मिलती ही है गवर्नमेंट के पैरामीटर के हिसाब से. So यहाँ पे हम लोग का एज के हिसाब से होता है hourly rates determine. और मैं कहूँगी अगर आप 18 के अराउंड हो, रेस्टोरेंट बार्स का मैंने जितना सुना है, इट्स अराउंड $20 एट अ स्टार्टिंग रेट. आवरली? हाँ जी, आवरली. और अगर रिटेल की आप बात करें, इट स्टार्ट्स अराउंड $23 एंड देन विद एज, नाउ दैट आई एम टर्निंग 20, तो अब मेरा $26 हो चुका है. एंड देन आई हैव अनदर जॉब दैट इज अ स्टूडेंट एम्बेसडर एट माई अकोमोडेशन एट यूनिवर्सिटी. तो उधर मेरे को आई हैव टू गाइड स्टूडेंट्स एंड उनकी हेल्प करना होता है बेसिकली, एंड ऑर्गेनाइज इवेंट्स फॉर देम. तो उधर का रेट थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज एज अ स्टूडेंट यू गेट अ बेटर आर्ली रेट. और उनका यू नो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एज वेल. तो उनका इट्स अराउंड $32. एंड इफ आई डू अ आउटडोर इवेंट, सपोज आई एम टेकिंग ऑल द किड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी टू लूना पार्क और टेरोंगा जू, देन आई गेट अराउंड लाइक $50 an hour. So that's another thing which you do. तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो अपनी पार्ट टाइम कमाई से अपनी फीस और अपना रहने का खर्चा और अपने बाकी के जो भी खर्चे होते हैं इस देश के, क्या वो खुद निकाल पाते हैं या पेरेंट्स से आपको सहायता लेनी पड़ती है? इन जनरल, डोंट टॉक जस्ट अबाउट योर सेल्फ बिकॉज आई नो योर बैकग्राउंड, बट टॉक अबाउट जनरल पीपल. In general, I'd say that with the amount that you can earn because of the 24-hour restriction comes down to around, say, I'd say on an average $2,000. So that can cover your rent plus the extra expenses that you have on food and going out and all of that. But for fees, I don't think that you can completely cover it. To a certain extent, yes. Because there are certain ways that you can get waivers from like university if you're working. Because there was a part of the time that my exams got over early, but the uni was still on, so I couldn't work more than 24, but I still had the time to. So I asked uni that if you can give me a permission for that. So they did give me that. तो उसके बाद I could work for more hours. तो उससे ज़्यादा पैसे आ जाते, so you can cover it. क्योंकि आर्या आपने यहाँ पे काम किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, सो आपको क्या लगता है कि यहाँ और इंडिया के काम करने की कल्चर में कितना डिफरेंस है? और इंडिया में आपको बहुत ज्यादा सिखा दिया जाता है कि जुगाड़ कैसे होता है, लोगों से बात कैसे करते हैं, अपना काम निकलवाना सिखाते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट केम रियली हैंडी विथ मी बिकॉज आप कभी भी किसी वर्क प्लेस में जाओगे, शायद क्लास और घर पे आपको कहीं इंडियंस मिल सकते हैं, आपको फेमिलैरिटी हो सकती है, पर काम पे क्योंकि इंडियंस इतने कम एम्प्लॉय ही होते हैं, तो आपको हमेशा इतनी डाइवर्सिटी मिलेगी कि आपको हर इंसान से बात करके अपना काम निकलवाना होता है. तो इंडिया में अगर लेबर ज़्यादा है, डिस्गाइज लेबर जो आप कह रहे हो कि एक जगह ज़्यादा ही लोग हैं और इतने का काम नहीं है, वो क्योंकि वहाँ पे वो वैसे ही चलता है और चला भी लेते हैं. यहाँ पे यू कांट बिकॉज द लेबर का कॉस्ट ही इतना ज़्यादा है, दे वुड नेवर एम्प्लॉय मोर पीपल. सो हमेशा जितना काम है उतने लोग होते हैं, तो हमेशा शिफ्ट्स नहीं मिल सकती हैं काम पे. दैट्स व्हेन द जुगाड़ू कम्स इन हेल्प कि चलो यू नो पीपल, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू बिल्ड योर ओन रेपो विद देम, सो दे गिव यू मोर शिफ्ट्स द मोर वर्क दैट यू गेट. मतलब थोड़ा तो यहाँ पे फास्ट होता है काम?
हाँ हाँ for sure बहुत फास्ट होता है यहाँ पे. You have to be on your toes all the time. It's not like you can just sit and आप देख रहे हो बस ऐसे दीवार को कि काम तो हो ही जाएगा, पैसे आ ही जाएंगे, वैसा नहीं होता है ना. हाँ. यहाँ पर तो कई बार मैंने देखा है कि केवल एम्प्लॉई है और उसके आवर्स भी फिक्स है कि भाई तुम्हें 2 घंटे में ये काम खत्म करके जाना है. बॉस नहीं है तो भी उतने घंटे में उतना ही पूरा काम करके और वो जाएगा. मतलब कोई किसी तरह की चीटिंग वगैरह यहाँ पर उस तरह की जो मुझे पता है कि शायद नहीं लोग करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट अगर नॉर्मल खर्चा करे, लाइक मैं उन बातों की को नहीं जोड़ रहा कि अगर आप क्लब जा रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो, आप फ्रेंडशिप लाइक उस तरह का सब कुछ खर्चा कर रहे हो तो एक डिफरेंट बात है. लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य स्टूडेंट वो सरवाइव करना चाहता है तो उसको कितने पैसे महीने में एटलीस्ट चाहिए डॉलर्स में? मंथली एक ब्रेकडाउन दे सकती हूँ कि आपके खाने वगैरह का खर्चा होगा समवेयर अराउंड 500 to 600 के बीच में, अगर आप काफी अच्छे से कर रहे हो तो. लाइक व्हेन यू आर नॉट गोइंग आउट, अगर आपको क्लब्स वाला खर्चा हटा देते हैं तो वो 500-600 है. एंड प्लस योर रेंट varies from say $390 to $500 per week. So that comes down to like $2,000 plus 600. So that's around 25-2600. उतना मैं हर महीने का मान के प्लस मोबाइल प्लस traveling. ट्रांसपोर्ट मैं वो 600 के बीच में ही डालती हूँ. और मोबाइल का खर्चा इज अराउंड $100 और $50. $30. मतलब 26 स्टूडेंट डिस्काउंट मोबाइल तो $2500-2600 में एक स्टूडेंट कैन सर्वाइव विदाउट फीस. विदाउट फीस, यस. राइट. हाँ, अगर लेविश करना है तो फिर देयर इज नो एंड. इतना भी ज्यादा है क्योंकि देयर इज नो लिमिट फॉर एनीथिंग एट दैट मैटर. हाँ, अदरवाइज $2500 में जो है एक स्टूडेंट यहाँ पे पे ठीक ठाक सी लिविंग हो सकती है. और एक स्टूडेंट क्या $2500 ठीक ढंग से अगर उसके पास 1-2 जॉब हो, यानी 24 आवर्स वीकली अगर उसको काम मिल जाता है तो इतना कमा भी लेते हैं. हाँ जी, आई कैन कवर माय एक्सपेंसेस. अच्छा. तो ऐसी कोई बात जो आप एडवाइस करना चाहो नए स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए प्लान कर रहे हैं कि क्या वो ना करें, किन चीज़ों की सावधानियां रखें, ऐसी कोई एडवाइस है आपके पास? सावधानी तो बस आई फील कि अगर आप कभी भी बाहर आ रहे हो, चाहे जितने जैसे भी घर से आते हो, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सेल्फ. कि यू कैन नेवर लाइक देयर इज अ सेइंग कॉल्ड टाइम इज मनी एंड ऑस्ट्रेलिया रियली प्रूव्स दैट. बिकॉज यहाँ पे आप जितना काम करोगे उतना आपको पहले एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको पैसे भी उस हिसाब से मिलते हैं. तो इट्स ऑनेस्टली कि आप कभी भी यू कांट वेस्ट योर टाइम. आई मीन ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ टाइम व्हेन यू आर गोइंग आउट. आई लव टू ट्रैवल, तो ऑस्ट्रेलिया इज रियली ब्यूटीफुल इफ यू कम हियर एंड स्टडी. तो आपको हमेशा अपने टाइम को डिवाइड करना होगा. इफ यू जस्ट गो विद द फ्लो कि ओके दिस वुड हैपन और आप नॉर्मली सब होने दे रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड वे टू अप्रोच, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फॉर बैचलर्स. और मास्टर्स में देयर आर डिफरेंट थिंग्स, यू नीड टू फाइंड अ जॉब, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू कंसिडर. सो सावधानी बस इस चीज़ की कि बस आप हमेशा यू हैव टू बी अलर्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, योर डिसीजंस. और जॉब वगैरह में यहाँ पर कुछ रेफरेंस वगैरह काम करते हैं कि आपने कुछ अच्छे लोगों से दोस्तियाँ कर ली या किसी भी कारण से किसी के आप संपर्क में आते हो तो ये वर्क करता है, थोड़ी हेल्प करती है, ये हेल्प करता है थोड़ा? हाँ जी, नेटवर्किंग इज अ ह्यूज कल्चर हियर. आप जितने नेटवर्किंग इवेंट्स में जा सकते हो, इट वर्क्स लाइक अ वंडर. तो एक मिनट यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा. तो नेटवर्किंग इवेंट्स भी होते हैं यहाँ पर? So कैसे every थोड़ा university has a lot of clubs. मैं यूसिट की अगर बात करूँ, हमारा एक मेन क्लब कॉल्ड USU, that's University Sydney Union. उसके अंदर there are a lot of different clubs. Academics के काफ़ी अलग है, cultural clubs अलग है, adventurous clubs अलग है. So you keep on joining those clubs. उसके अंदर you get to meet new people. Obviously आपको अपने classmates मतलब batchmates काफ़ी मिलेंगे. And on top of that, especially the academic clubs have a lot of events that they host, in which they call, जिसमें जो इवेंट जो क्लब के मेंबर्स हैं उनको बुलाते हैं. एंड प्लस अगर फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क ऑफ वुमेन करके क्लब है, सो वी कॉल अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर इनटू लाइक ह्यूज पोजीशंस एट डिफरेंट कंपनीज. सो एग्जांपल लाइक डिलॉयट की मार्केटिंग डायरेक्टर को बुला लिया, या फिर KPMG की किसी इंसान को आपने बुला लिया, एंड दे कम एंड दे इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स एंड हाउ दे कैन अप्रोच टू come to vacation programs, the internship programs, for jobs. So they generally just come and guide us. So that's a huge thing. Because networking, firstly, if you can, I feel the best thing that I do is to get everybody's LinkedIn. LinkedIn as a website, it might seem to be very vague कि इतने सारे opportunities है, but that's the thing, when you apply to so many opportunities, you will get one or two of them.
So that's one of the things ki networking really helps. In terms of reference, it helps both in casual jobs and in professional jobs. So for casual, suppose I'm working at Accent Group or Myers, I can refer my friends into that, saying that okay, there is an employee who knows them. So there's kind of कि वहाँ पे जो security check की बात आती है वो काफी ज़्यादा eliminate हो जाती है because Right, because there is a trust built with the employee and hence with the employee's friend. So that's how it helps there. And in professional jobs, obviously, if I know somebody, they can just refer me saying, oh, I know this person is capable enough to do it. And after that, for professional jobs, I won't say that it is a huge help, but it obviously gets you an interview especially. So I think it always helps. तो जैसे परी, आप ये बताओ कि आपके यहाँ पर और कौन कौन से सब्जेक्ट या और कौन कौन से फील्ड की स्टडीज़ होती हैं और किस किस कंट्री के स्टूडेंट्स ज़्यादातर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं? Field के studies, okay. So for UNSW, there's art, there's engineering, there's food science, there's commerce, and even bio. There's everything. Even if you want, there's this club. It's ARC for students. It has like 300 clubs, whatever you want. Either football, if you want to study football, there's that as well. There's if you wanna play hockey, वगैरह. The random stuff, they have studies for that. And also if you want, if I am studying currently I'm studying accounting and I want to change into something like I want to go into marketing or something like that, I can still do that because I'm in my second year. They have given me itna permission or diversity. And also about it's not about kaun aata, it's everybody. It's Chinese, it's Indians, you'll see Australians, and you'll see people from France as well. I've seen a lot of them coming here, and US, like more London, whatever country you say, you will see them. And also like if you want to see different cultures, you can like just join their clubs and like meet them. सो आजकल यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी होते हैं या अभी भी बस इक्का दुक्का कभी कभार देखने को मिलते हैं? That is not true. UNSW में this society, we have a society, Indian Society, UNSW Indian Society, in which there are like about 3,000 members and in the university, and they do organize every Indian event, or like when there's O week, they just do like performances, Indian dances, so that people know that there are Indians, and if you want to connect with them. One of my friend is studying food science and she does not have any Indian in her course. So she met all of us through the dances only, and now we are like a big group. तो आप डांस भी सीखती हैं? Yeah, they provide teachers and all that. ओके, तो ये शौकियाँ सीख रही हैं या इसको करियर बनाना है आपको? No, it's just a hobby. हॉबी। अच्छा ये बताएं कि जब आप इंडिया से आते हैं या आपकी तरह और भी जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, पहली चीज़ तो आप चूँकि ग्रेजुएशन में आ गए, 12th करके ही आ गए, कुछ लोग ग्रेजुएशन वगैरह करके आते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये सबके साथ हो सकता है जिनका चूँकि फैमिली ग्राउंड इंडिया में काफ़ी बैकग्राउंड जो है काफ़ी ठीक ठाक सा होता है, तो वहाँ सर्वेंट्स होते हैं या घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो कुकिंग वगैरह करते रहते हैं, सब कुछ खाना पीना मिलता रहता है। तो आपको वो क्या चैलेंज यहाँ पर देखने को मिलता है जब पहली बार आप यहाँ आते हैं कि आप कैसे कुक करें, कैसे खाने का मैनेजमेंट करें? बिकॉज आई थिंक सो एवरी डे यू कांट आउटसाइड एंड ईट। और एक तो फूड में आप इंडिया में तो एक बार आप चाहें तो 2-4 महीने बाहर भी खा सकते हैं, बिकॉज एवरीवेयर यू कैन गेट सेम फूड वॉट एवर यू आर गेटिंग एट होम। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, वो बर्गर पिज्जा कितने दिन खाएंगे? तो क्या ये भी आपको एक डिफिकल्ट लगा था शुरू में, और कैसे आप इसको हैंडल करते हैं फिर? So when I started, it was a little difficult because I did not know how to make a roti. I did not know how to cut my own veggies. It was very tough. I agree. Because हम इंडिया में हम ऐसे नहीं होता कि मम्मा प्रैक्टिस कराती है, but there is somebody looking up to you, or like they're looking at us while doing. So it is like हो जाता है. But when there's nobody and you have to literally do it, or you have to like be on video calls with your mom, like mama, what do I have to do now? हाँ, तो वीडियो कॉल की क्लास चलती है। Yeah, it's more like that. But it was a little tough in the start, but after some time you get habitual and it just goes with the flow. What about you? Same, मेरा अभी तक same main problem cooking होता है. Even though I know how to cook decently, but it just कि आपको टाइम ही नहीं मिलता वो कर पाने का, कि आप इतना थक जाते हो कि आपकी हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि इतना इजी नहीं है। बिकॉज सिर्फ वो खाना बनाना नहीं है, आपको वही बर्तन धोने भी है, आपको अगले दिन के लिए सेट भी करना है, आपको
और उसके बाद आपको पढ़ना भी है अपने लिए एक्स्ट्रा, तो वो सब इट ऑलरेडी फील्स लाइक अ टास्क, तो वो करने पे आते हो तो आप ऑलरेडी थक चुके होते सो हो। गाइस, इसके पहले के एक वीडियो में मैंने इसी टॉपिक पे सेम चीज़ें बताई थी। आज मैं आपके सामने विटनेस 2 लोग बैठे हुए हैं। मैंने यही बताया था कि जब आप इंडिया से या किसी भी दूसरी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया जैसी किसी दूसरी कंट्री में आप पढ़ने के लिए जाते हैं, आप चाहे 18 साल के हों चाहे 24 साल के हों, आप अगर अपने घर से खाना बनाना सीख के आते हैं, झाड़ू पोछा करना सीख करके आते हैं, कपड़े धोना सीख करके आते हैं, अपने सारे काम करना सीख करके आते हैं, तो यहाँ आपको लेस डिफिकल्टीज फील होंगी, क्योंकि इस कंट्री में 1 मैन आर्मी है, 1 मैन शो होता है। आप ही झाड़ू लगाते हैं, आप ही खाना पकाते हैं, आप ही बर्तन धोते हैं, आप ही कपड़े धोते हैं, आपको ही पढ़ना है। दैट यू हैव टू अर्न मनी फॉर इट, नहीं तो कोई आपको यहाँ पैसे नहीं देगा। माता पिता भी एक समय के बाद में बच्चों की तरफ देखने लगते हैं कि और कितना, पढ़ाई करते ही इसलिए हैं कि कल को आपको नौकरी करना है। तो अगर पढ़ाई के एक सर्टेन टाइम के बाद में अगर आप साइड बाय साइड नौकरी शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको आगे जा करके करियर बनाना भी सही रहेगा। तो आप इस बात पे यकीन करते हैं कि इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमें बाहर जाना है, तो बाकी प्रिपरेशन के साथ साथ भैया अपने काम करने का अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस भी अपने घर में करना चाहिए सीरियस नोट पे, कि नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। वो काम जरूर आएगा, मतलब सीख के आओ, पर यहाँ Yeah. आके आपके लिए वो तब भी डिफरेंट ही रहेगा, क्योंकि Yeah. वहाँ आप सिर्फ वो सीख रहे हो, यहाँ पे आपको उन You're doing सब it मैनेज live. करना Yeah. वो अलग हो जाता है। जितना सीख के आई, वो मेरे काम में उतना ही। जैसे फौजी के लिए फायरिंग रेंज में सीखना अलग बात है और बैटल में जाके फायर करना अलग बात है। सामने बंदा उतना होता है। Exactly. तो अपने- और फाइनली ये बताइए, आप ऑस्ट्रेलिया में अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं? आपको लगता है पीआर वगैरह लेने के लिए और कितने साल आपको कोशिश करनी पड़ेगी, या अभी आपको और क्या क्या करना पड़ेगा जिससे आप पीआर आपको मिल सके? आपने बताया था अभी मुझे कुछ पॉइंट सिस्टम होता है, तो कैसे आप अपने पॉइंट्स गेन करते हैं, उसके लिए आपको और क्या क्या करना अभी बाकी है? फॉर पीआर अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, हर चीज के अलग अलग होते हैं और कोर्सेज के भी अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, मार्केटिंग के उससे थोड़े कम है, बट अगर आप बैचलर्स में आते हो इट्स ईजियर, क्योंकि अगर मैं एम कर रही हूँ पीआर के लिए, आई वुड गेट बाय द एज ऑफ 25 और 26, जहाँ पे मेरे बैचलर्स का पीआर पॉइंट्स अलग कैलकुलेट हो जाएंगे, मेरे जॉब के अलग, रिटेल जॉब्स के अलग, फॉर मी मैं मास्टर्स अगर डिग्री करती हूँ तो उसके अलग, और मैं जब इवेंचुअली जॉब करूंगी उसके पॉइंट्स। आई थिंक इफ यू अक्यूमुलेट ऑल ऑफ दैट, तो आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक क्रेडिट पॉइंट्स, यू गेट द पीआर एंड इवेंचुअली द सिटीजनशिप। तब फिर आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। हाँ जी, you get eligible and then you get And the also, chance to apply. It is different for every state. Like for Sydney, it is a little more tough. Melbourne, it is tough. And if you are in Perth or Adelaide, it is a little easier. जस्ट लिटिल बिट, नॉट मच। Yeah, it's हाँ, not it a is. difference. Australia में point system तो वैसे ही रहेगा। हाँ, Just but you- you get like more points. Just if you are in Canberra हाँ, or like because वहाँ पे the PRs are quite easy. That's what they say. बट वहाँ फिर दूसरी चीजें टफ हैं, जॉब मिलना Yeah, टफ है, yeah. सरवाइव करना दूसरे ढंग से, It's मतलब just वो that. वो It's मुश्किलों just को that. इवोल्व कर देते हैं। Yeah. राइट राइट राइट। तो अभी आपको कम से कम 5 साल और वेट करना पड़ेगा पीआर अप्लाई करने के लिए। बाय द वे, पीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? Permanent residency. सुनाई ही नहीं दिया। Permanent residency. इतना संकोच से, अरे भाई मैं आपके मुंह से कहलवाना चाहता हूँ, मैंने तो हजारों बार बोला हुआ है। व्हाट क्या मतलब होता है पीआर का? परी Permanent residency, guys. हाँ, मतलब आपको अगर परमानेंट ऑस्ट्रेलिया में रहना है तो पीआर मिलना जरूरी है। अच्छा, एक चीज और है कि अभी आपके पास 4-5 साल का टाइम है, अगर आपको कहीं ठीक ठाक सी जगह में जॉब मिल जाती है और एम्प्लॉयर के साथ में आपके अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं, मतलब एक अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर दे आपका वीजा, तो पीआर मिलना थोड़ा आसान और जल्दी हो जाए? हाँ जी, so if they sponsor your visa, तो it becomes much more easier to even get it in a specific amount of time, क्योंकि आप खुद अगर वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर कि एम्प्लॉयर ही कर दे आपके लिए, तो वो ईजिली आ जाता है, बिकॉज वहाँ पे वो काफ़ी सारे पेपर वर्क वो संभाल लेते हैं। एंड उसके अलावा हाँ, एम्प्लॉयर वीजा और एमबीए सब आपका स्पॉन्सर। आपका वीजा स्पॉन्सर हो जाएगा तो मुझे लगता है आपकी 50-60% प्रॉब्लम्स जो हैं तो कम हो जाएंगी, राइट? Yeah. True. अच्छा, एक और पर्सनल क्वेश्चन, चाहे तो उत्तर देना चाहे तो ना दें,
चूंकि आप लोग जिस उम्र में आते हैं ये वो वाली उम्र होती है जिसमें चाहे आप इंडिया में हो चाहे यहाँ हो दुनिया के किसी भी देश में हो, इंक्लूडिंग अगर आप विलेज में हो तो शायद ये चीज़ वहाँ पे भी होती है। क्या ये चीज़, मैं बहुत वजह से पूछ रहा हूँ कि क्या ये चीज़ कहीं सचमुच डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है जब आपको किसी से प्यार व्यार हो जाता है? आपको नहीं पर किसी को तो हो ही जाता होगा ज़्यादातर, चूंकि मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, डिस्कशन होता है मुझे, तो मैंने कई बार देखा कि इस उम्र में ऑलरेडी आपके पास इतना बर्डन कि आपको पैसे निकालने हैं, कई बार तो अपने को फीस भी पूरी निकालनी है, और उम्र के चलते आप किसी से टकरा जाते हैं, कहीं पे आपको प्यार व्यार भी हो जाता है, उसका भी तनाव, ये सारा कुछ भी बहुत बड़ी सफरिंग होती है। तो क्या एडवाइस है कि भाई इस उम्र में आपको किस तरह से अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, ऐसी सब चीज़ों में पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ते भी हैं तो लाइक हाउ यू कैन कीप बैलेंस इन बिटवीन एवरीथिंग? ऑनेस्टली इसमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए उसके लिए तो मैं सही इंसान नहीं, क्योंकि वो सबकी पर्सनल चॉइस होती है। यस, पर यहाँ आके मैंने इतना तो देखा कि मेरे पास पर्सनली टाइम ही नहीं बचता ये सब सोचने या करने का। और जो लोग मैंने आसपास देखा है जो रिलेशनशिप्स वगैरह में आते हैं एंड दे फाइंड अ पार्टनर, उनके लिए आई थिंक इट्स ईदर, मैंने दोनों टाइप के देखे, एक जो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि वो इतना ज्यादातर तो मैंने ऐसे ही देखे। क्योंकि आप यहाँ एक फॉरेन लैंड पे आते हो, मैं उन्हें गलत भी नहीं कहूंगी क्योंकि आपके पास कोई फेमिलियरिटी या फैमिली होती नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी उनके अराउंड हो जाती है बिकॉज देयर इज समवन गिविंग यू इमोशनल सपोर्ट, आपको हमेशा आपके पास रहते हैं एज अ फैमिली। बट देयर आर पीपल हु हैव सीन हु आर मैनेजिंग इट सो वेल कि मैं तो सीखूं पर मेरे को टाइम नहीं मिलता, पर वो लोग ऐसे हैं कि हम अपना काम भी करेंगे, वो अपना पढ़ाई भी कर लेते हैं, दे गिव टाइम टू दिस एज वेल। सो इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ देम, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना पर्सनल पता होना चाहिए आप कैसे हो या फिर आपकी प्रायोरिटीज अभी क्या है, कि राइट नाउ आई वांट टू वर्क, आई वांट टू अचीव समथिंग, तो वो मेरी अलग हो जाती है। अगर किसी को लगता है कि हाँ दे कैन मैनेज इट ऑल, गुड फॉर देम, एंड द पीपल हु आई वुड रेकमेंड टू समवन हु इमोशनली वीक ऑनेस्टली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने देखा है कि ये एक तो थोड़ी सी इमेच्योर एज होती है, तो उनको मैंने कई बार टूटते हुए देखा है, फिर वो अंदर से ना उनकी पढ़ाई की इच्छा बचती है ना किसी चीज का, वो बहुत गंदे वाले फेज पे पहुंच जाते ऐसा हैं। होता है, लाइक इफ इट इज वन ऑफ माय फ्रेंड, वो बहुत ही गॉट रियली डिस्टर्ब्ड एंड उसकी पूरी लाइक ही वाज वन ऑफ द टॉपर, लाइक उसके हाई डिस्टिंक्शन में, एंड वन दे ब्रोक अप एंड द गाय स्टार्टेड फॉलोइंग ऑफ, उसका पहले क्रेडिट पे आया, फिर व्हेन ही गॉट फेल ही रियलाइज्ड व्हाट एम आई डूइंग, he had to pay उसका पूरा सेमेस्टर का फिर से फीस, and then he was like no I cannot be like that, he even went to therapies I think so, Yes. and then he realized कि this is not cool, I'm here on a different, इतनी दूर आया हूँ मैं, and parents का पैसा सब कुछ everything comes into your mind, and then that's when I think so you realize the most, when Yes, I think so exactly. the money comes in your mind, and that's when you're like I need to focus on myself rather than on somebody else, and फिर तो करना Yes, ही ये जो परी ने बात कही है यही मैं कहना चाह रहा था, जॉब हो जाए उसके बाद। if you know कि I can manage तभी करो, वरना तो it's like opportunities won't come to you, you have to go and get the opportunity. गुड फ्रेज। आप No, just be confident. Don't feel कि आप किसी foreign land पे आए और you're less than anybody, या फिर आप खुद ही मोटिवेटेड इनफ नहीं हो कुछ करने के, आप अपने आप को कम समझोगे तो फिर आपको दुनिया भी कम समझेगी। वेरी वेल सेड, आई एग्री विद दैट। यस, मैंने बस एक ही चीज करा है कि मैं जिस पे हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मैं अपने आप को प्रेजेंट भी उतनी कॉन्फिडेंस से करती हूँ कि बाकी कोई मुझे कम समझेगा तो फिर तो होगा, मेरे को कुछ नहीं मिल सकता। मेहनत करें और भगवान पे भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे घर पे आने के लिए, और बहुत सारी बातें की और मेरे वीडियो का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इसी तरह से देखते रहिए मेरे वीडियोस। मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।